नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार ओझा जेएनआर के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ, और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। Should we wish our viewers in China? I think we should, right? Ni hao to our viewers in China and konnichiwa to our viewers in Japan. Pradeep ji. Abario kuchamo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. So the Prime Minister is really and truly in battle mode. Total battle. Oh God, what a speech! And he is no holds barred speech, especially against the Congress party. He is really targeted the Congress. And we'll talk about that, especially over Operation Sindoor. But there's one particular thing, of course, which I'm kind of surprised and puzzled by. The manner in which Rahul Gandhi ji actually said that it is India that begged for a ceasefire, which I think was stupid. I don't think it behoves the leader of the opposition to make such a comment. And neither does it behoves a Congress MP to make such a comment कि Operation Sindoor तो क्या है, वो क्या बोला? तमाशा. That's really truly silly. I mean, let's the more the opposition drags this particular Operation Sindoor, it'll come back on them. It'll come back to haunt them most probably, because they don't have something conclusive to show that the government has failed anywhere. And it's not convincing the people, at least till now, unless they come up with something more during the course of the debate. I think the final touches are being given by the Prime Minister. No, debate is over after today. It's over. Yes. This is the final answer. Let's go straight across to our guests. I think some of our guests are kind of in a hurry, so let's go straight across to them. We are joined by three very distinguished guests indeed. Our old friend Dr. Aviral Malik is here. Aviral Malik Saab from the BJP. Thank you very much for joining us, sir. Namaskar. And from the Congress, Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, sir. And from the Congress for the first time, बड़े मतलब सबसे पहली मर्तबा पुणे से अक्षय जैन साहब. अक्षय जैन साहब नमस्कार. नमस्कार अक्षय जैन साहब. And of course Pooja Mishra ji of the Samajwadi Party, one of the most brilliant young leaders from Uttar Pradesh. Pooja Mishra ji, namaskar. I know Pooja ji, you have to leave early, so I'll go straight across to you first. Pooja ji, आप ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अखिलेश यादव जी ने 2-3 पॉइंट रखे, काफी अच्छे पॉइंट थे. Very frankly speaking, it was a very very serious speech. I didn't see any frivolity in it. There was nothing which was irresponsible. It was very very straight and upfront. कि भाई आपने अगर ये किया तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये भी कर लीजिए. Which actually gave suggestion to the government कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. How do you look at it, ma'am? पूजा मिश्रा जी आप बताएं. अभी तो मुझे लगता है कि राजीव जी प्रधानमंत्री जी के भाषण पे जो भी दे रहे हैं, इससे पहले आपके जो है डिबेट से पहले मैं उन्हीं को सुन रही थी. और जो है समाजवादी पार्टी जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने आपके डिबेट पे कई बार बोला था कि हम चाह रहे हैं कि स्पेशल सेशन हो. अगर स्पेशल सेशन नहीं होता है तो हम मॉनसून सेशन में आएंगे और जो हमारे क्वेश्चन है हम उस पर वो लेकर के करेंगे, पुटअप करेंगे. और हम जो है सरकार से प्रश्न वही कर रहे हैं, हालांकि हमें जवाब नहीं मिल रहा है. अभी जो है जो गृह मंत्री महोदय ने कहा कि ऑपरेशन महादेव भी चलाया गया और जस्ट अ डे बिफोर वो 3 आतंकी मारे गए, उनका आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है. मुझे लगता है कि शायद स्पेशल सेशन कर दिए होते तो क्या पता वो जब वहां पे भी गृह मंत्री जी को संबोधन करना होता तो 3 आतंकी कम से कम मारे तो जाते, जो इतनी देर से मारे गए. और अभी मैं चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जी के जो है जो भी भाषण चल रहा है उस पर डिस्कशन हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जब चालू हुआ कि प्रधानमंत्री जी बोलने जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो सुनते हैं प्रधानमंत्री जी. और उसके बाद में मैं सुन रही हूँ और सो फार ऐसा नहीं लग रहा है. आपने पता राजीव जी आपने सुना ही होगा सो फार आपको ऐसा लगा क्या कि उन्होंने कोई ऐसा जवाब दिया हो जो ये बता रहा हो कि ऑपरेशन सिंदूर. हमारे पास में सवाल अभी भी वही है. हम कह रहे हैं कि हमारे देश की सेना घुस करके मारी, हमने सीज फायर किया. वो कह रहे उपराष्ट्रपति का कॉल आया, प्रधानमंत्री जी के पास में कॉल आया, 4 कॉल आया, 10 कॉल आया, कोई बात नहीं है, आपने उठाया, उनसे बात किया. वो तो प्रधानमंत्री के पास में कॉल है, वो ऑब्वियस बात है रिकॉर्ड में रहेगा, क्या कन्वर्सेशन हुआ वो भी रिकॉर्ड में रहने वाला है. फिर आप इस चीज का सवाल का जो जवाब चाहिए ना राजीव जी कि क्या चूक हुआ, कैसे चूक हुआ, क्या वहां पे परेशानियां हुई, वो सारी चीजों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है. ये टेररिस्ट आए तो आए कहां से? मतलब आपने कहा ना कि जो टेक्नोलॉजी की बात की हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आपके पास में है,
आपके सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, लगातार ली होती है। आप एक बार अटेम्प्ट तो डालिए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पुलवामा में गाड़ी कहाँ से आ गई, पहलगाम में जो है आतंकी कहाँ से आ गए। तो ये सारी चीजों पे अगर मुझे लगता है कि सरकार करना नहीं चाहती, करना चाह रही होती तो हम इस पर डिस्कशन कर रहे होते। हमारे प्रधानमंत्री जी अभिनंदन की बात नहीं कर रहे होते। देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे बात कर, कोई बच्चा बात कर रहा हो, अपनी ही सेखी भगाड़ने के लिए आए हुए हैं। लगातार हमने घुस करके मार दिया, हमने जो है ऐसे क्या, सब कह रहे थे अभिनंदन अंदर गया है तो अब अभिनंदन को कैसे वापस लाएंगे, अब तो मोदी फंसा। आपको लगता है कि अभी जब वर्तमान में संबोधन करने को आए थे, वो कह रहे विपक्ष के ऊपर जनता हंस रही है। जनता इंतजार कर रही है कि आप जवाब दीजिए। जनता उन प्रश्नों का जवाब चाहती है कि पहलगाम में आतंकी आए कैसे, किस रूप से आए और उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है। पूजा आप जी, राजीव जी बताइए कि अब तक किसने लिया अकाउंटेबिलिटी। पूजा जी, क्या अखिलेश यादव जी थोड़ा आर्मी पर प्रश्न नहीं उठाते, आर्मी ऑपरेशंस पर प्रश्न नहीं उठाते? जब ऑपरेशन महादेव फर्स्ट डे ऑफ सेशन ही क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो मोदी जी बोलने लगे कि किस प्रकार से। मैंने आपसे पहले बोला कि अगर जो है ये स्पेशल सेशन बुला लेते तो शायद ये ऑपरेशन महादेव तभी हो गया होता। आप आइडेंटिफाई कैसे करो कि वो आतंकी है कि आपने आर्म्स देखे, उनके आर्म्स एंड एमुनेशन देखे और गोली के खोखे देखे। अगर रिवॉल्वर मेरे पास में मार्क 4 है, रिवॉल्वर जो है प्रदीप जी आपके पास में मार्क 4 है, तो मार्क 4 में जो गोली लगती है वही गोली तो आपके उसमें भी लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक ही जो है पैटर्न की जो हथियार है वो एक ही व्यक्ति के पास में होने वाला है। हम सब जानते हैं, जो लोग जो है यूज करते होंगे गन, उनको पता ही होगी, जानकारी होगी। ये गन से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? मार्क 4 मैंने भी यूज किया, मार्क 4 आपने भी यूज किया रिवॉल्वर की, तो कहां से आप आइडेंटिफाई कर ले कि वो रिवॉल्वर की मार्क 4 थी? आपको नंबर तो पता नहीं था सीरीज का कि आतंकी ने इसी सीरीज का ले रखा हुआ था। आप सीरीज हमने क्रॉस चेक कर लिया हुआ है। आप कह रहे हैं कि वहां पे खोखे मिल गए हुए, उससे ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये वही आतंकी है जो है जो पहलगाम में आए थे हमला करने के लिए। वो भी कब हो गया? जब हमारे देश के गृह मंत्री महोदय को सदन में संबोधन करना था। आपको लगता नहीं है कि ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक क्रिया है? और अगर प्रश्नवाचक क्रिया होगी तो प्रश्न तो लाजमी है। इस चीज को कैसे डाइजेस्ट किया जाए कि एक जब जो है पूरा 100 दिन तक जो है जानकारी नहीं निकल करके आती है और जब जो है आपको संबोधन करना होता है तो आपकी एक स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है। हम सेना आकर के कह दे तो सेना की जो है तरफ से आता है ये बयान आके कहता है कि हाँ हम इस चीज को कंफर्म करते हैं। इससे पहले जो भी आप बात करिए, जितने भी हमले हुए, जो भी घटनाएं घटित हुई, उनमें पूरी जनता को जानकारी है कि रूट क्या रहा, किस रूट से आतंकी आए, कहाँ पे हमारा फेलियर हुआ, कितनी चीजें हमारी नुकसान हुई, हमने उनको कैसे पकड़ा। अभी के समय में क्या हो रहा है? बस हमने गए पाकिस्तान के अंदर घुस के मार दिया, हम गए पाकिस्तान के अंदर घुस के मार दिया, पाकिस्तान हमसे गिड़गिड़ा रहा था, मतलब पाकिस्तान हमसे गिड़गिड़ा रहा था, हम अंदर घुस करके उसको मारे। आपको क्या हमारा क्या हुआ? टेररिस्ट को मुहूर्त के हिसाब से पकड़े क्या? टेररिज्म को मुहूर्त के हिसाब से खत्म करे क्या? मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या अभी इस मुहूर्त के हिसाब से? तो जब टेररिस्ट मिला उनको मार डाला, चाहे वो फर्स्ट डे हो लास्ट डे हो। प्रधानमंत्री इस प्रकार, अमित शाह जी ने कहा कि आपको सरकार पर विश्वास करना चाहिए, आप सरकार को छोड़े। आज मोदी जी भी वही रिपीट किए, आप सरकार को विश्वास नहीं करते, आर्मी को विश्वास नहीं करते, मगर विदेश से कोई बोलते हैं उनको विश्वास करते हैं। पूजा जी नहीं, हम विदेश से कोई बोल रहा है उस पर विश्वास करते ही नहीं है और हम विदेश से बोलने वाले व्यक्ति पे विश्वास करना भी नहीं चाहते हैं। पर हमारे देश का प्रधानमंत्री बोले तो सही, क्यों नहीं बोला? आप जब यहाँ पे चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मैं भी डिबेट पे बैठी थी, भाजपा के प्रवक्ता से बोलेंगे हमें कोई जरूरत नहीं है किसी देश को जो है आकर के हमारा समर्थन करे, हम खुद स्वयं में काबिल थे, इसीलिए किसी देश ने हमारा आकर के समर्थन नहीं किया। तो फिर जो है भारत तो हुआ ना इतना बड़ा हिस्सा टैक्स का माननीय प्रधानमंत्री जी के विदेशी दौरे पे क्यों खर्च होता है? लेकिन पूजा मिश्रा जी नहीं जानना चाहते कि ट्रंप क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। पर अगर कोई पब्लिक डोमेन में आकर के बार कोई तीसरा देश 26 बार 27 बार एक कोई बात कह रहा है, अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जब संबोधन चालू हुआ तो उनको बोलना चाहिए था ये ट्रंप पागल हो गया हुआ है, उसका दिमाग नहीं है, वो लगातार बड़ा बढ़िया लगता, हम अप्रिशिएट करते कि भाई चलो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला तो सही। लेकिन पूजा मिश्रा जी यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि सिर्फ 3 देशों ने भारत का विरोध किया ना, जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। बाकी हर देश ने ये कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो दैट इज सपोर्ट इनफ, व्हाट मोर डू यू वांट?
पहले भी आज तक कभी ऐसा हम हुआ है? चाहते हैं मैम पूरा सवाल सुन साथ में खड़े हुए थे, मैम वैसे पूरा ही सवाल सुन हमारे लें। साथ में क्वाड्रिलेटरल जो डायलॉग साइन किए हुए वो 3 देश हमारे साथ खड़े हो गए होते। मैम हम इतना ही चाहते हैं, हमने डायलॉग क्यों साइन किया हुआ है? मैम डायलॉग को पूजा रद्द करें। जी, खड़े होने का क्या, इससे क्या तात्पर्य हुआ? एवरी कंट्री सेड इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड herself apart from 3 nations, namely Azerbaijan, Turkey and China. These were the only 3 nations that were with Pakistan. As far as we are concerned, what did you expect? Let's go back to 1971. 1971, the Soviet Union was with us. Nobody got up and said, yes, India has every right to liberate East Pakistan and create Bangladesh. No one said that. I have read enough about 1971. My uncles fought in 1971 and we know the aftermath of 1971, what happened. So let me not go there. All I am saying is, in international diplomacy, nobody says that we are standing with you, maro. कोई ऐसा नहीं बोलता मैम. Fact is, हर एक ने ये बोला, yes, we are all against terrorism. In fact, UN Security Council also passed a resolution, we are against terrorism. और तो और छोड़िए, तो आप क्या चाहते हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेवल पे कहेंगे कि वी आर विद द टेररिस्ट? जयशंकर साहब ने, that's more than enough, मैम, that's more than enough. कि भाई देश है सारे लोग, वो इतना भी नहीं कहेंगे क्या? हम तो तब कहते हैं ना जो हमारे साथ में डायलॉग में है, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे जो हमारे साथ में डायलॉग में। हम हाउडी मोदी, आपकी बात ट्रम्प सरकार, हम ऐसे संबंधों की बात कर रहे हैं। हम जो जहां पे हम साइन कर रहे हैं, हम ऐसे संबंधों की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के साथ में कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है, हमसे मतलब नहीं है। हम उनके साथ में, आपको पता टर्की का जो है कंपनी भाग गई, अभी तक वापस नहीं आई। 80 करोड़ रुपए जो है हमारे फंस गए उत्तर प्रदेश के टर्की कंपनी के बाद, पास में ताला लग करके चला गया हुआ। चाइना के साथ में हमारे विदेश मंत्रालय जाकर के मीटिंग कर रहे होते हैं, वहां पर टैरिफ डिसाइड कर रहे होते हैं, पर एट द सेम टाइम हमारे जो है सरकार की तरफ से एक बार भी नहीं बोला गया कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि जो है हमारी आर्मी बताती रही कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, पर सरकार की तरफ से नहीं आया। आप कह रहे हैं कि हाँ, आप पूरा विश्व ये कहेगा ही कि टेररिस्ट अटैक के तो अगेंस्ट ही है। ये जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, तो इसके अगेंस्ट तो बोलना ही पड़ेगा। और किसी भी देश में होगा, कोई भी कंट्री होगी, वो बात बोलेगी कि भाई अगर किसी कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। तो पूजा मिश्रा जी, मान लीजिए अगर आपकी सरकार है, जो है डिप्लोमेसी है, तो मुझे नहीं लगता, ये तो उनका खुद का अपना है कि हम जो है। So Pooja Mishra ji, if your government had been in power, if suppose Akhilesh Yadav ji had been the Prime Minister, the United States of America, the United Kingdom, Australia, Japan, Germany, France, everybody would have said, destroy Pakistan, attack Pakistan, we are with you. Is that what they would have said? Come on. More years. When he will be Prime Minister, then let's see what happens. What happens? Personally, I am waiting for that day. Personally, I am waiting for that day. I really like Akhilesh Yadav. About 2047. This can be done by only BJP. I really like Akhilesh Yadav. Let's go across. पूजा जी, एक प्रश्न, प्राइम मिनिस्टर ने कविता के रूप में पीओके का जवाब दिया। अखिलेश यादव जी ने पूछा, प्रियंका जी ने पूछा, राहुल जी ने पूछा, बोले लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। वही 1948 में अगर पीओके ले था तो आज वो सवाल, लम्हों ने खता की थी पूजा जी, सदियों ने सजा पाई है। क्या आंसर किया प्राइम मिनिस्टर? आज से जो है कुछ साल बाद में हम आप फिर ऐसे जब हम लोग सदन में बैठेंगे और हमारी एज हो चुकी रहेगी, तो हम ऐसे शायरी बोलेंगे, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अगर जो है 2025 में जब हमला चल रहा था, उस समय पीओके ले लिया गया होता, तो आज फिर ये पाकिस्तान टेरर अटैक नहीं कर रहा होता। हम इस तरीके से क्या डिस्कशन चल रहा है। मैं कह रहा हूँ वर्तमान की बात करिए, आज से 30 साल बाद तो हम लोग होंगे 60 साल के, तो कि पीओके इस समय था लेने का, नहीं लिया। और हमारे आंखों के सामने दिख रहा था, जैसे पूजा मिश्रा जी तब दिख रहा था। पूजा मिश्रा जी, कोई वो पेड़ के नीचे लटका हुआ सेब नहीं है कि उखाड़ करके पीओके को ले ले। इट इज नॉट पॉसिबल, वी डोंट हैव द कैपेसिटी। ये तो भाजपा को वेरी क्लियर था ना, इतने सालों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा। खता की पूजा मिश्रा जी, किसी ने कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के, हाँ एक दो शायद छुटपुट प्रवक्ताओं ने कहा होगा कि हम अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेंगे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग ले लेंगे। अरे हलवा है कोई? मैं सीधी साधी बात बोल रहा हूं। 19 we said we hit 11 air bases in Pakistan. The Pakistanis themselves went to the Americans and said, अरे यार इन्होंने हमें 11 पे नहीं मारा, 19 पे मारा है। We didn't even know. We had hit 19. Our DGMOs did not reveal it. It is Pakistan that revealed it officially कि 19 bases हमारी
मतलब खत्म हुई हैं, एंड 9 टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स, दैट्स मोर देन इनफ. वेरी फ्रैंकली, आस्किंग फॉर एनीथिंग मोर would be like the war between the Russians and Ukraine. We would still be fighting a war, and we would be suffering all sorts of casualties. Let me go across to Mr. Jain. Jain साहब, आप ये बताएं, चिदम्बरम साहब बार बार ये क्यों पूछते हैं सर कि ये बताइए कि असल में पाकिस्तानी थे या नहीं थे? ये क्या मतलब हुआ? आप ये बताइए, यही चिदम्बरम साहब थे जिन्होंने एक टर्म कॉइन करी थी, सैफरन टेरर. सर, do you think this is ऑल राइट? और उसके अलावा प्रणति शिंदे, अदरवाइज ब्रिलियंट गर्ल, सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी है. सुशील कुमार शिंदे जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं. वो कहती हैं ये ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है. जैन साहब ये क्या है? अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड. ऑपरेशन महादेव जो है, ऑपरेशन महादेव की पुष्टि जब भी होगी जब सेना इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी, क्योंकि सरकार जो है, सरकार ने सच में तमाशा लगा के रखा हुआ है. मैंने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी सर, कर रहे थे सर. प्रणति शिंदे जी ने ऑपरेशन महादेव नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की बात की है. इफ यू वांट आई कैन सेंड यू द बाइट. हम आज की बात करें, महादेव का जो आज का जो मूवमेंट हुआ है, जिस टाइम पे गृह मंत्री और ये सब लोग खड़े हुए सदन में, और उस वक्त ही ऑपरेशन महादेव की घोषणा हुई और उस टाइम पे इस टेररिस्ट को मारा गया. ये तो कल हुई थी सर. वो टेररिस्ट कौन कल हुई थी. तो सेना ने उसके ऊपर पुष्टि करना बहुत जरूरी है. उसका कारण ऐसा है, अब की बार ट्रम्प सरकार, जो आपने कुछ 5 मिनट पहले पूजा जी को बात करते हुए आपने जो कहा कि वो उनका काम नहीं है, किसी भी देश ने ओपनली आके बाहर साइड लेना जरूरी नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री किस मुद्दे पे अमेरिका में जाके अब की बार ट्रम्प सरकार जाके का घोषणा करते हैं और उसके बाद ट्रम्प हार जाते हैं और जो बिडेन सत्ता में आते हैं, उसका इंडिया को भुगतना पड़ा. अब एक सीधा सा सवाल है, पुलवामा का जब मुद्दा आया, पुलवामा के बाद इन्होंने इसके ऊपर राजनीति की. जब अपना ऑपरेशन सिंदूर होता है, उसके 2 दिन बाद ये बिहार में जाते हैं प्रचार के लिए, और हर बार उसको पॉलिटिसाइज करने का काम किया हुआ है, और प्रचार के अलावा दूसरा इन लोगों को कुछ काम नहीं है. लेकिन जैन साहब, बिहार के चुनाव तो नवंबर में आ रहे हैं सर, या नवंबर या दिसंबर में है. उस टाइम पे प्रचार करने से किसका फायदा होने वाला है? मोदी जी पहलगाम के बाद इमीडिएट बिहार जाते हैं. सर पहले से प्रोग्राम फिक्स था. क्यों आप कश्मीर जाना आपका काम नहीं था? देश के प्रधानमंत्री हो, कश्मीर कितने बार गए? जहाँ पे टेरर अटैक हुआ है वहाँ पे राहुल जी गए, वहाँ पे प्रधानमंत्री का काम था जाना, प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की. क्यों ट्रम्प का नाम आप ले नहीं पाया सदन में? इतने दिन से सदन चल रहा है, और जब स्पेशल सेशन की मांग की जा रही थी उस वक्त नहीं थे. आप यूनाइटेड किंगडम जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, बाकी सब देशों में घूम रहे हो, 4 बार जाके घूम के आते हो. जिस देश की लोक संख्या 25-30 हजार, 50 हजार, 1 लाख है, वहां का सर्वोच्च पुरस्कार लेके उसका ही कर रहे हो. अरे देश में आज का माहौल क्या है? पहलगाम के ऊपर की जो भूमिका है अभी तक स्पष्ट कर देनी चाहिए थी. उसके अंदर का जो फोटोज जिस टाइम पे सामने गवर्नमेंट ने लाए हुए, वो भी फोटोज सही नहीं थे. वो आतंकवादी के जो फोटोज थे वो गलत दिए गए थे. इसके ऊपर जवाब देना चाहिए था. अभी आज जो आतंकवादी मारे गए हैं, उनका नाम क्या है, उनका आता पता क्या है, कौन थे, कहां से थे, उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए. आप जिस अभी आ जाएगा ना सर, सदन में आके बात कर रहे हो, अभी आ जाएगा ना सर, अभी आ जाएगा. लेकिन जैन साहब, मेरी आपसे शिकायत है, कांग्रेस से जबरदस्त शिकायत है, और मेरी समाजवादी पार्टी से भी ये बहुत बड़ी शिकायत है. सर सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए था मेरी समझ में, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो मैं यही सवाल पूछता सरकार से. अगर मैं विपक्ष में बैठा होता, मैं ये सवाल पूछता कि अभी तक लोगों की चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं, राख ठंडी नहीं हुई है, और आप जो हैं अलाउ कर रहे हैं बीसीसीआई को एशिया कप में क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान से. व्हाई डिडंट यू आस्क? सर ये कांग्रेस को पूछना चाहिए था, क्यों नहीं पूछा? कर क्या रहे हो आप? मजाक कर रहे हो क्या आप? नहीं सर, नो सर, इज पेट्रियटिज्म ओनली फॉर अस. देश आज न्याय और सुरक्षा चाहता है. आज बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई जय शाह साहब जो है, ये राष्ट्रवाद से ऊपर खुद को मानते हैं, और ये सिर्फ पारिवारिक बिजनेस मॉडल हो चुका है. क्यों, क्या जरूरत है हमें? आज आतंक और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते. जब आतंकवादी हमले होते हैं उस वक्त हम लोग बातचीत बंद करते हैं और व्यापार को रोक देते हैं, फिर क्रिकेट मैच ही क्यों? और इसके ऊपर हमारी रणनीति अलग क्यों कर रहे हैं आप लोग? और इस सबसे जो जरूरी बात है, भारत पाकिस्तान मैच जो है दुनिया भर में देखा जाता है, और इस मैच के दरमियान अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो है उसका फायदा पाकिस्तान डेफिनेटली उसका होगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो सामान्य रूप से चल रहे हैं. क्या हमें उन्हीं वैधता और उन्हें मंच देना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है. और इस वक्त सत्ता किसकी है? सवाल ये उठता है, आपको लगता नहीं है कि सरकार को एकदम बैन कर देना चाहिए? ये बीसीसीआई को बोलना चाहिए यू विल नॉट प्ले. कांग्रेस पार्टी की पूरी भूमिका है इसके ऊपर. पवन खेड़ा जी है, सुप्रिया सिन्हा जी है, इन्होंने भी टिप्पणी की हुई है. इसके ऊपर प्रियंका जी का भी बयान आया हुआ है. आज सिर्फ मैं इस चीज के ऊपर मैंने एक पंक्ति लिखी है.
आज का सवाल है राष्ट्रहित पहले या क्रिकेट? हमारा स्पष्ट मत है देश सर्वोपरि है, पाकिस्तान से कोई भी खेल नहीं जब तक एक भी आतंकवादी भूमि भारत की भूमि पर सक्रिय है। आज उनका पाकिस्तान को जो है पूरे दुनिया में न्यूट्रल स्टैंड दिया गया है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। पाकिस्तान हमेशा एक आतंकवाद के तरीके से उनको देखा जाता था, बट इस बार काफी सारे देश जो है उनके समर्थन में सामने है। आपने जो बोला कि तीन देश नहीं, इस बार पूरी दुनिया लगभग 176 कंट्रीज ने उनको सपोर्ट भी किया। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बनाने के लिए। अक्षय जैन जी, आज राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा कि इंडिया आस्क्ड फॉर द सीजफायर, इंडिया ने सीजफायर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अटैक, सवेरे मॉर्निंग 1:05 पर अटैक हुआ। 1:35 को हमारे डीजीएमओ सामने से फोन करके बोलते हैं कि हमने आपके टेरर इंस्टॉलेशंस को अटैक किया, बट नॉट द आर्मी इंस्टॉलेशंस एंड एयर इंस्टॉलेशंस। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि दिस इज India's call for a ceasefire. He says India asked for ceasefire. You think the whole country is going to agree to that? अक्षय जैन जी, क्या पूरा देश इस चीज ट्रम्प का सवाल ही नहीं आता है। वो सबसे पहले ट्वीट करते हैं। ये जिम्मेदारी थी अपने जो डिफेंस चीफ है, डिफेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, इन लोगों के माध्यम से इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए था। ट्रम्प क्यों जानकारी देता है इस चीज की? और उससे पहले की जो भी अभी आप देखोगे पिछले 4 घंटे में अपना जब ट्वीट हुआ, ट्रम्प का ट्वीट आने के 4 घंटे पहले जो भी मूवमेंट हुई है वो पूरी दुनिया के सामने है। क्यों? ये लोग कहा गए थे और ट्रम्प ने आज 27वीं बार, कल 27वीं बार इसके ऊपर एक ही चीज के ऊपर दिया है कि मैंने सीज फायर के लिए ये किया है बिकॉज मैंने दोनों देशों को व्यापार बंदी की धमकी दी हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर जवाब देने का काम किसका है? देश के विरोधी पक्ष नेता का नहीं है। इसके ऊपर जवाब देने का काम है देश के प्रधानमंत्री का। बट प्रधानमंत्री के पास में इसका कोई जवाब नहीं है, नहीं वो देने वाले, क्योंकि उनके पर्सनल संबंध, पर्सनल अदानी को बचाने के लिए उनका सब काम चल रहा था और अदानी के लिए उन्होंने सब कुछ किया हुआ। I was wondering when Adani ji would come up in this conversation. मोदी जी का कहना है कि आतंक के सिर्फ आतंकवादी नहीं, आतंकवादों के आकाए उनके नींद हराम हो चुका है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज पाकिस्तान जो है एक साथ खड़ा हुआ है भारत के, ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। आज उनको आपने स्पेस दी हुई है, उनको पूरी तरीके से नेस्तानाबूद करने का काम हमारे भारत सरकार का था। भारत सरकार के अपने जो सैनिक है सब लोग तैयारी में थे, लेकिन आपने रातों रात खुद डिक्लेयर कर दिया, अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान से साथ बात करके सीजफायर डिक्लेयर कर दी। आज आप इसके पहले एक मिनट बताओ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स आर्मी में है, डिफेंस में है, सभी लोग इस चीज से नाराज थे। जो रिटायर्ड है वो लोग भी और जो लोग आज प्रेजेंट है वो लोग भी। मैं डॉक्टर मलिक के पास जाने के पहले पीओके कंट्रोल में लेने की, डॉक्टर मलिक के पास जाने के पहले एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। 26/11 के बाद हम लोग तो मुंबई में हमने तो कवर किया है साहब, हम तो ताज के अंदर ही थे। 2 या 3 जर्नलिस्ट ताज के अंदर घुसे थे उसमें से गलती से हम भी थे। उसके बाद शर्मल शेख एक जगह है जहां पर कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया और पाकिस्तान की, और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई कि दोनों देश जो हैं वो आतंकवाद के विक्टिम हैं। यह स्टेटमेंट जारी की गई और यह भी जारी किया गया कि बलूचिस्तान was equated with with the terrorist activities in India, कि बलूचिस्तान में हम इंटरफियर नहीं करेंगे और वो कश्मीर में वाया टेररिज्म इंटरफियर नहीं करेंगे। तो सर इक्विवेलेंस कौन लेकर के आया? आज तक मोदी जी का, सर माफ कीजिएगा, इट वाज अ जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन द देन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एंड आवर डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज तक कभी मोदी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कोई जॉइंट बयान तो आज तक कभी नहीं आया सर। ये हमने कभी नहीं सुना, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, के पाकिस्तान इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ टेरर। हम लोगों ने आज तक कभी नहीं कहा। ये सिर्फ एक ही बार कहा गया था। मोदी जी के, उसका कारण ऐसा है, मोदी जी के प्यारे दोस्त जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके प्रधानमंत्री के बर्थडे पे जाते हैं, उसकी बिरयानी खाने जाते हैं। आज तक कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया और पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हैं वो इंदिरा गांधी ने किए हुए हैं। और आपने जो बात की इंटरनेशनली और ग्लोबली हम लोगों को इस बार कोई साथ नहीं था। आज सर व्हाई डिड वी एग्री? सर आप जवाब नहीं दे रहे। डॉक्टर मलिक आप बताएं। साथ हमारे बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, मलेशिया के साथ हमारे सब संबंध बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिसी जो है इन लोगों ने खराब और डिस्टर्ब करके रख दी है। करेक्ट, राइट। डॉक्टर अबीरुल मलिक आप बताएं सर। सर आप ये बताएं कि जहां तक के कांग्रेस का सवाल है और बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज का सवाल है, डॉक्टर मलिक
हर एक कोई आपसे ये पूछना चाहता है कि भाई आप डिटेल क्यों नहीं देते। और दूसरी चीज है, टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस सर, जैसे पूजा मिश्रा जी ने कहा कि यार जिस दिन आपकी स्टेटमेंट है, जिस दिन मानसून सेशन जिस दिन शुरू होता है, उसी दिन मूसा पकड़ा जाता है, सुलेमान मूसा उसी दिन एलिमिनेट किया जाता है। सर ये तो फिल्मी स्टोरी है सर, प्लीज अब डॉक्टर मलिक बताएं, अब आप बोलें सर प्लीज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय है पूजा मिश्रा जी का और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस के हमारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूं, बड़े स्पष्ट तरीके से आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट कर देता हूं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हुआ। तो 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार रही और 2014 से 2025 अभी हमारी सरकार कंटिन्यू है। तो 7,217 आतंकी घटनाएं घटित हुई 2004 से 2014 के मध्य में, और 2,150 आतंकी घटनाएं घटित हुई हमारे प्रधानमंत्री मोदी के Pooja ji, thank you very much for joining us. I know you have another program at 8 o'clock. Thank you very much, ma'am. Namaskar. नहीं। You're staying? Oh, lovely. Wonderful. We are in luck. We will be blessed with the company of the future Chief Minister of Uttar Pradesh. Ji, Dr. Malik, please go ahead, sir. Please go ahead. Dr. Malik, please. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो सबने स्पष्ट देखा 7,217 एक प्रकार से घटनाएं घटित हुई और 2,150 घटनाएं हमारी सरकार के दौरान घटित हुई। तो 70% आतंकी घटनाओं में कमी आई, वो बिल्कुल स्पष्ट है हमारी सरकार के दौरान। नंबर 2, जहां तक विषय नागरिकों की मृत्यु का जहां तक सवाल है, तो बिल्कुल स्पष्ट है मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल रही, 1,770 नागरिकों की मृत्यु हुई और 357 नागरिकों की मृत्यु, 80% की कमी आई नागरिकों की मृत्यु में, वो हमारी सरकार के दौरान हुई। वो बिल्कुल स्पष्ट है। 1,060 जवान शहीद हुए मनमोहन सिंह जी की जब 10 साल सरकार रही, और जब हमारी सरकार है तो 50% की इसमें भी कमी आई और 542 जवान इसमें शहीद हुए। ये ऑन एंड रिकॉर्ड आंकड़े हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके मध्य में रख रहा हूं, तो स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो 123% अधिक आतंकवादी मारे गए हमारी सरकार के दौरान, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान। मैं सोचता हूं ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस विषय पे भी चर्चा करनी चाहिए। और ये स्पष्ट रूप से सामने आता है, जब सरकार मजबूत होती है तो आतंकवाद कमजोर होता है। ये स्पष्ट रूप से आज दिखाई पड़ रहा है, ये ग्राउंड लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के यहाँ मित्र बैठे हुए हैं, ये अडानी और अंबानी की बात कर रहे थे। अब इस आतंकवाद के विषय में अडानी बीच में कहां से आ गए, ये मेरी समझ से परे का सवाल है, इसलिए इस पर मैं कतई उत्तर नहीं दूंगा। आपको अगर उत्तर देना है तो मेरे सवाल का जरूर दे देना। तेलंगाना में आपकी सरकार है और आपकी सरकार ने गठबंधन कर रखा है अडानी के साथ, अडानी के साथ MOU साइन कर रखा है। इस विषय का आप जरूर जवाब दे दें, बेहतर रहेगा। और दिन भर आपके नेता और अडानी और अंबानी की माला जपने का काम करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, जहां तक विषय है रॉबर्ट, डॉक्टर मलिक सुनिए, डॉक्टर मलिक जी एक बात पर, प्रियंका गांधी जी ने, डॉक्टर मलिक जी, प्रियंका गांधी जी ने जो प्रश्न उठाया, कह रहे कि आप हमेशा 26/11 के बात करते हैं कि देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, बट वो पहले कह रहे कि 26/11 के बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दिए, इस्तीफा ले लिया था और होम मिनिस्टर रिजाइन कर लिया था। आप अमित शाह जी पर कब ये कसेंगे कि आपको रिस्पांसिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा? यानी दे आर आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ अमित शाह जी। आपने क्या पहल किया आफ्टर पहलगाम अटैक? क्या हुआ? यू हैव नॉट, नोबडी हैज रिजाइन्ड, नोबडी हैज टेकन रिस्पांसिबिलिटी। डॉक्टर मलिक जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय आपके सवाल का, तो निश्चित रूप से आपका जायज सवाल है, इसका मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आंसर दे देता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस के हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें भी इस चीज का जवाब देना चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा सबसे पावरफुल नेता कांग्रेस पार्टी में है। और वो नेता है क्या है वो अलग, ये रॉबर्ट वाड्रा कहां से आ गए? अमित शाह जी रेजिग्नेशन देंगे क्या? गवर्नर रेजिग्नेशन देंगे क्या? Aviral Malik साहब, please. Are we going to put accountability on the governor or are we going to put accountability on the home minister Amit Shah? मैं उसी पे आ रहा हूं, केवल मैं और रॉबर्ट वाड्रा पे बाद में डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी लैब्स में बात करेंगे, इंटेलिजेंस फेलियर। बोलिए मलिक जी। और मिस्टर अजीत डोवल, सवाल पे आ रहा हूं, इंटेलिजेंस फेलियर का आपका सवाल है, अमित शाह जी के विषय पे आपका सवाल है, आपके ही सवाल पर मैं आ रहा हूं। केवल एक पॉइंट मैं स्पष्ट कर देता हूं जो मैं कंटिन्यू कर रहा था। रॉबर्ट वाड्रा जी का एक बयान आया था और रॉबर्ट वाड्रा जी इतनी हैसियत और इतनी पावर रखते हैं, वो चाहे तो केंद्र में मंत्री बना सकते थे जब कांग्रेस की सरकार थी।
जिसे चाहे लोकसभा राज्यसभा भिजवा सकते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। इतनी वो 11 साल पहले की बात हो गई, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है। वो परिवारवाद के कारण मैं कह रहा हूं। तो देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी ने आतंकी हमले के पश्चात स्पष्ट रूप से कहा, जो बयान आया कि किस तरीके से नमाज अदा नहीं करने दी जाती, और उसके बाद ये घटना घटित हुई। अब जहां तक आपका विषय है इंटेलिजेंस फेल्योर को लेकर, आदरणीय अमित शाह जी का जहां तक विषय है, केंद्र सरकार का जहां तक विषय है, तो स्पष्ट रूप से हमारे द्वारा उत्तर दिया गया। घर में घुस के मारने का काम किया गया, रावलपिंडी से इस्लामाबाद फेलियर कैसे हुआ सर? और उसके साथ सर, साथ वो तो आफ्टरमैथ है ना। अविनाश मलिक साहब प्लीज चाहे जितना अटैक्स हो गया, कोई भी अटैक, चाहे वो पुलवामा हो, उरी हो, अब पहलगाम हो, Where is the proof? किसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहां पर है? ये सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हुआ? कौन है इसके पीछे? गाड़ी मिला के, जैसे अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं, पुलवामा का गाड़ी मिला क्या आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बोलिए सर। पठानकोट, देखिए मैं एक मिनट अविनाश मलिक साहब, एक मिनट सर एक मिनट राहुल सर पठानकोट, नगरोटा, उरी जी, ये कंटोनमेंट्स हैं। पहली बार हमारे कंटोनमेंट्स पर अटैक हुआ। ये 3 कंटोनमेंट है सर। उसके बाद पुलवामा, उसके बाद पहलगाम। दीज वर ऑल इंटेलिजेंस फेलियर्स। तो जो प्रदीप जी ने आपसे अभी सवाल पूछा है, इंटेलिजेंस फेलियर के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल रखा गया, उस विषय में जरा बताएं सर। 26/11 में होम मिनिस्टर रिजाइन किया था, सीएम रिजाइन किया था, यहां पर कौन गए? बोलिए डॉक्टर मलिक जी। देखिए, हम रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर जिस प्रकार से हमने कार्रवाई की, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबको मालूम है। घर में घुस के 12 और उसके साथ साथ एयर बेसिस डिस्ट्रॉय किए गए, और उसके साथ साथ जहां तक विषय पाकिस्तानी आर्मी का, तो पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी मारे गए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए, और साथ ही साथ जहां तक विषय है पाकिस्तान के सिविलियंस का, हमने उनको किसी रूप में किया, ये भी हमारे मानवता का एक दृष्टिकोण है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को दूर चटाने का काम हमारी भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और सर, पाकिस्तान को तो हमारी फौज मारेगी। मुस्कुरा भी रही है, तो पूजा जी को यह भी जवाब दे देना चाहिए। आदरणीय राम गोपाल यादव जी, हम सब सम्मान करते हैं, राम गोपाल जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था सेना के विषय पर, उसका भी जवाब दे दें तो सर, आप तो जवाब दे दीजिए। सर, आदरणीय सम्माननीय अविनाश मलिक साहब, आपके सामने हाथ जोड़ करके बड़े रिस्पेक्टफुली आपसे पूछ रहा हूं सर। सवाल भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। भारतीय गुप्तचर एजेंसीज क्या कर रही थी सर? ये 6 मैंने आपको इंसिडेंट बताए, उससे भी ज्यादा इंसिडेंट है। इफ यू वांट आई कैन गो इनटू डिटेल्स आल्सो। आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड ऑफ ऑन मणिपुर येट, क्योंकि वो फिर पूरा मैटर डाइवर्ट हो जाएगा। सर, आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव फेल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हु हैज बीन हेल्ड रिस्पांसिबल? आप मुझे बताइए, किस बंदे को उठा करके जेल में डाला गया है, किसको सस्पेंड किया गया है, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? चलिए, अमित शाह जी cannot look after everything, I understand. He is the home minister. Home minister cannot be held responsible. But field पे जो DFO था, जो फील्ड ऑफिसर था, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, जो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में था, ये सब लोग क्या कर रहे थे सर? ये तो बताइए ना प्लीज। अविनाश मलिक साहब बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय जांच का, कार्रवाई का, तो जांच के आधार पे, रिपोर्ट के आधार पे निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार के दौरान होती है, और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाता है। इसमें कि मैं सोचता हूं कोई फंड बट नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जिस तरीके से कार्रवाई करने का, तो मैं सोचता हूं जहां भी जो भी आवश्यक डिसीजन होता है लेना, वहां लिया जाता है। आदरणीय प्रदीप जी का सवाल है, तो प्रदीप जी ने स्पष्ट पूछा, मैं उसका स्पष्ट जवाब भी दे देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, जहां तक विषय है अखिलेश यादव जी का भी इन्होंने नाम लिया कि अखिलेश जी ने पूछा, और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, सवाल कर रही है। बिल्कुल सवाल करें। माने मोदी जी ने, माने अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिस तरीके से जवाब दिया, वो सबको स्पष्ट मालूम है। आज लाइव देख भी रहे हैं ये, और लोकसभा में भी मौजूद है। लोकसभा में भी स्पष्ट रूप से देखा, सदन में भी मौजूद है, सदन में भी देखा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय है इनके स्टेटमेंट्स का, इनके सवालों का, ये अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं। 60 साल में कितने आतंकी हमले हुए उस विषय बात नहीं करेंगे, और इनका क्या क्या फेलियर्स रहा उस विषय बात नहीं करेंगे। 60 साल छोड़ दीजिए, 60 साल पे चर्चा मैं भी नहीं करना चाहता, केवल 10 साल पे चर्चा कर लीजिए। शिवराज पाटिल साहब को भी रिजाइन करना पड़ गया सर। ही वाज द यूनियन होम मिनिस्टर, उनको रिजाइन करवा दिया सर। कांग्रेस ने तो हर एक से रिजाइन करवाया। मैं ये नहीं बोल रहा, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, बट द फैक्ट रिमेन्स, रिजाइन करवाया, लेकिन होम मिनिस्टर को रिजाइन कराने के बाद कार्रवाई क्या की? कार्रवाई कुछ नहीं की, कार्रवाई जीरो, कोई कार्रवाई नहीं।
सर आई एग्री, रिजाइन करा दिया, सर उस पर रिजाइन डिबेट करके नहीं है। खत्म बात वही। अरे मलिक साहब उस पर डिबेट 11 के बाद क्या कार्रवाई हुई? मलिक साहब उस पर डिबेट नहीं है, मलिक साहब उस पर कोई डिबेट नहीं है। आई एग्री विद यू कि हम लोगों का रिस्पांस लैकिंग था। अब तो कांग्रेस के लोग भी मानते कि हमारा रिस्पांस नहीं था, लेकिन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि जब तक आप अपने इंटेलिजेंस सेटअप को, हमारे इंटेलिजेंस सेटअप को ठीक नहीं करेंगे, एक साल के बाद एक और पहलगाम हो जाएगा। हमारा क्या करेंगे? इंटेलिजेंस था, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, देखिए हमारा ही इंटेलिजेंस था, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज थी और पूर्ण रूप से आर्मी, यही आर्मी थी जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उस समय भी जो लोग हंगामा करना चाहते थे, खून बहाना चाहते थे, लोग कह रहे थे कि कश्मीर में खून बह जाएगा, 370-35 से हटने के बाद 370-35 से हटा, शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं रही, वो भी उस समय सबने देखा। राम मंदिर निर्माण हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, उस समय भी सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को, लैंडमार्क जजमेंट को एग्जीक्यूट करने का कार्य उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने किया, वो भी स्पष्ट रूप से सबने देखा। लोग कह रहे थे खून नदियां बहेंगी। डॉक्टर मलिक, यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर भी है और जैकेट भी बदला है। वो शिवराज पाटिल के खिलाफ ये था कि 6 बार 8 बार कुछ जैकेट बदले, यहाँ हमारे भी होम मिनिस्टर या जो भी है कितने बार जैकेट बदले, सब लोग बोलते हैं। तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है, जैकेट भी बदले हैं, फिर भी कोई गया नहीं, कोई इस्तीफा नहीं सर। और पठानकोट में तो आईएसआई को इनवाइट कर लिया आपने, आ जाओ यार हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन करो। चर्चा इस मुद्दे पे होनी चाहिए। जिस तरीके से युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, ये सीज फायर चिल्ला रहे हैं, यूएस चिल्ला रहे हैं। तो मैं केवल हाथ जोड़ के इनसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस चीज को स्पष्ट जान ले, यूएस का कोई किसी प्रकार से इसमें दखल नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप का दखल नहीं रहा। विक्रम मिस्री जी हो, हमारी विदेश मंत्रालय हो, या फिर डीजीएमओ टॉक हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। और उसके साथ साथ मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी हुआ था। इन्हें मालूम होना चाहिए, ये कह रहे थे मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, मोदी जी सामने नहीं आए, आगे जाके होम मिनिस्टर का इस्तीफा लेंगे, नाम संदेश दिया, क्या प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर का इस्तीफा लेंगे? इंटेलिजेंस फेलियर के तहत क्या प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर पे एक्शन लेगा? डॉक्टर अबरियल मलिक, इंटेलिजेंस फेलियर, लोकल नेटवर्क फेलियर, नो एक्शन, क्या होगा? एक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं स्पष्ट रूप से जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आपने कहा होम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, क्या होम मिनिस्टर पे एक्शन होगा? क्या अमित शाह जी पे एक्शन की आपने बात कही, तो जिस तरीके से हमने रिप्लाई दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वो तो सबने देखा। नंबर 1 पॉइंट वाइज का जवाब दे रहा हूं। नंबर 2, जिस तरीके से आपने रेजिग्नेशन की बात कही, रिजाइन उन लोग को करना चाहिए, रामगोपाल यादव जी ने क्या टिप्पणी की सेना पर, रिजाइन उन लोग को करना चाहिए जो सेना पर, उन लोगों को करना चाहिए। सैयद अगार रुहुल्लाह कैदी श्रीनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सांस्कृतिक हमलावर बताते हैं, सांस्कृतिक हमलावर इन्होंने बताया था, पहलगाम आतंकी हमले से पहले बताया था टूरिस्ट को सांस्कृतिक हमलावर। रिजाइन इन्हें करना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरा स्पष्ट सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मंत्री हैं आपके और सिटिंग गवर्नमेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांस्कृतिक हमलावर कह रहा है, इससे बड़ी चिंता की बात आखिर क्या हो सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबरियल मलिक साहब एक छोटा सा टेलीविजन चैनल के करोड़ दर्शक देख रहे हैं जी, एक छोटा सा सवाल है सर। एक मंत्री जी हैं, आदरणीय सामान्य मंत्री जी हैं सर। जैन साहब आराम से रहिए, आप बहुत टाइम है अपने पास, कोई टेंशन नहीं है सर। मलिक साहब एक मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के, जिन्होंने वो हमारी एक स्पोक्स पर्सन थी ना, कर्नल साहब कुरैशी, सोफिया कुरैशी, उनके बारे में कुछ बोला उन्होंने कि तो आतंकवादी फैमिली से आती हैं, ये करती है, इसलिए हमने एक आतंकवादी को जवाब देने के लिए आतंकवादी की बहन को खड़ा कर दिया। सर क्या उसका इस्तीफा भी लेंगे कि नहीं लेंगे? आपने तो उसका भी इस्तीफा नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं, बिल्कुल मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से विषय है विजय शाह जी का, विजय शाह जी के विषय पे आपने सवाल पूछा, सोफिया कुरैशी जी के विषय पे आपने सवाल पूछा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। उस मुद्दे पे किस प्रकार से स्पष्ट हुआ था, नारी सशक्तिकरण की बात, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने और आगे बढ़ाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी केंद्र सरकार ने किस प्रकार से आगे लाकर सोफिया कुरैशी जी के माध्यम से स्पष्ट किया था, वो भी सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय विजय शाह जी का और जिस तरीके से विषय किसी भी टीका टिप्पणी का, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड किसी रूप में नहीं हो सकता है, ये चीज कतई हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्पष्ट है
और उसके साथ साथ उन्होंने माफी भी सामने आके मांगी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और ये चीज टॉलरेट करने योग्य नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी टॉलरेट का करने योग्य नहीं है और उन्होंने माफी मांग ली है। लेट मी गो अक्रॉस टू पूजा मिश्रा जी। जी पूजा मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए। यू वांटेड टू इंटरव्यू, प्लीज गो अहेड मैम। मैं ससम्मान भाजपा के प्रवक्ता को साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। वो जो है अगर एक ही चीज को पेसिव एक्टिव वॉइस में कर करके बोलते रहते हैं, वो मुझे लगता है लोकोक्तियां जो बनाई गई हुई थी कि आप आम पूछेंगे महुआ का जवाब मिलेगा, आप थोथे चने हो गए, या फिर जो है आप जल गगरी, ये लोकोक्तियां जो बनाई गई हुई थी ऐसे प्रवक्ताओं के लिए ही बनाई गई थी। ससम्मान ये आपकी शोभा में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कर रहे हैं सदन में, माननीय गृह मंत्री जी भी यही कर रहे हैं सदन में। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप जाइए पाकिस्तान पे टूट पड़िए, आपने सीज फायर क्यों कराया, नहीं, प्रश्न नहीं है। जब आप जा रहे थे वहां पे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, तब भी आपसे प्रश्न नहीं था, हम आपके साथ में खड़े थे। पर अब जब जो है इतनी सारी घटनाएं घट गई हुई हैं और आप आकर के अकाउंटेबिलिटी तक नहीं तय कर पा रहे हैं, तो जनता जानना चाहती है। आपको पता है कि ये जो मॉनसून सत्र है ना, इसका इंतजार बहुत बेसब्री से किया है जनता ने, विपक्ष ने भी बहुत बेसब्री से किया हुआ है। और हमें लग रहा था कि पहला डे ही होगा जिसपे हम ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर का डिस्कशन इतनी डिले हुआ, 1 वीक डिले होने के बाद में। और जब हो रहा है तो ना तो हमें जो है रक्षा मंत्रालय से, ना हमें विदेश मंत्रालय से, ना हमें गृह मंत्रालय से, और ना ही देश के प्रधानमंत्री से ऐसा कुछ जो है मिल रहा है जो इस बात की पुष्टि करती हो कि कहीं पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था और उसको लेकर के सरकार कितनी संजीदा है। आपको पता होगा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, बिल्कुल भी नहीं। अगर आर्मी ऑफिसर्स आकर के पब्लिक डोमेन में ये बातों को ना बताया कि नहीं, हम ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहे थे, वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द चाइना टू, तो हमें लगता है कि हमारी सरकार तो ये हमें बताना ही नहीं चाहती थी। हम कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि ये जो होते हैं इनके बयान सुन करके जो आर्मी चीफ है, कि अगर ये आर्मी चीफ की तरफ से बयान नहीं आ रहे होते तो हमारी सरकार हमें ये भी नहीं बता रही होती कि हाँ ऐसे युद्ध में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अपना भी नुकसान होता है। तो इस पे बात ना तो माननीय प्रधानमंत्री अभी ये पहुंच गए पता नहीं कहाँ पे कि इनसे पूछना चाहिए, ये जवाब देना चाहिए कि इस समय में क्या हुआ था, तो 26/11 में क्या हुआ था। अरे भाई 2025 चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पहुंच गए थे अभिनंदन करते, पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब बस इतना तय कर लीजिए कि ये जो टेररिस्ट है किस रूट से आ रहे हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं हो पा रही है। And which is the network? किलोमीटर अंदर आ रहे हैं। Sorry to interrupt you. अखिलेश यादव जी ने एक और बात कही which is very very sensible by the way। और मलिक साहब मैं आपको बता दूं और जैन साहब आपको भी बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी के जो खुद सीनियर लोग हैं वो भी ये पूछ रहे हैं। बीजेपी के तो खैर दबे मुंह से पूछ रहे हैं, कुछ बोल नहीं सक रहे, बट द फैक्ट इज दैट नेटवर्क इज स्टिल देयर। जो जिस नेटवर्क के थ्रू ये डाचीगाम फॉरेस्ट के अंदर जो एक नेशनल रिजर्व है, बाय द वे इट्स अ रिजर्व फॉरेस्ट, इट इज जस्ट लाइक आवर संजय गांधी नेशनल पार्क, बिल्कुल वैसा ही नेशनल पार्क है वो डाचीगाम फॉरेस्ट जो है। मैम वो नेटवर्क अभी भी मौजूद है, वहां पर लोग वो हैं अभी भी। वी नीड टू गेट रिड ऑफ देम। उसमें से मानता हूं उनकी इंटरोगेशन करिए, उसकी वजह से ये 3 लोग मिल गए हैं। अभी और कितने लोग कहां पर बैठे हैं कुछ मालूम नहीं है। अब आप बोलें पूजा मिश्रा जी, प्लीज कंटिन्यू, बोलिए जी। तो ये जब तक आप रूट क्लियर ही नहीं होगा कि कोर्स पकड़ करके चले आ रहे हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आप जो है कह रहे हैं कि हम सुरक्षा कारणों से ये बताना नहीं चाहते हैं, तो भी आप प्रिसाइज जवाब दे दीजिए कि दिस आर द रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर अनेबल टू रिवील the exact location and exact route which these terrorists followed to enter our nation। ये अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है कि आप जो है 250 किलोमीटर अंदर आ जाता है टेररिस्ट, आने के बाद में हमारे लोगों को मार रहे होते हैं और वहां पे सुरक्षा नहीं अवेलेबल होती है लगभग घंटे भर के लिए। तो ये जो अभी जो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जितने भी जगह पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है वो जगह कहती हूँ कि ये टेररिस्ट उतने खतरनाक नहीं है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, उतने खतरनाक नहीं, खतरनाक वो हैं जो हमारे देश के अंदर में है और वो घुन है। क्योंकि बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के, बिना उनके, आप चाहे उनका नेग्लिजेंस कह लीजिए, चाहे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, चाहे ये कहिए कि वो उसमें इंडल्ज है, बिना इस चीज के इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती है। और इनको जब तक हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, जब तक हम इनको एक्सट्रैक्ट आउट नहीं करेंगे, ये सॉल्व होने वाला नहीं है। 100 है हम 100 को मार दें,
पर ये तो बना हुआ है ना, ये तो टनल बना हुआ है, ये टनल ही नहीं हम जो है जाकर के खुदाई कर रहे हैं, तो ये तो होता रहेगा। और यही प्रश्न है सरकार से कि अगर ये टनल बना हुआ है तो टनल क्यों बना हुआ है, और ये टनल बनने का जो कैसे बन गया, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कौन आकर के आगे से इस्तीफा प्रेजेंट कर रहा है कि ये टनल बन गया, इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं इस पे नजर, मेरी जिम्मेदारी थी कि टनल नहीं बनना चाहिए था, बट ये बन गया हुआ है तो मैं इस्तीफा देता हूं। ये करना चाहिए था। तो ये जब से सरकार बनी हुई है उन्होंने ये कल्चर ही बंद कर दिया है। हमने बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे देखे हैं घटना घटने के बाद में कि हम घटने की जिम्मेदारी लेते हैं और अपना इस्तीफा प्रेजेंट करते हैं। इस सरकार में ये बंद हो गया हुआ है और हम लोग गंभीरता एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने प्रधानमंत्री जी से। मैं सच बताऊं, मैं हमेशा सदन की कार्रवाई मैंने बचपन से सुनी हुई है, बचपन से न्यूज देखा, बचपन सदन की कार्रवाई सुनी, पर अब जो सदन की कार्रवाई सुनते हैं वो डिसअपॉइंटमेंट देता है। हमें लगता है जब देश का प्रधानमंत्री बोले तो हम चाहे विरोध में क्यों ना बैठे हो, हमें लगना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, गंभीरता निकल करके चली आ रही है। बचकानी बात नहीं होनी चाहिए कि हम जो है कांग्रेस वालों पे हंस रही है जनता। जब जयशंकर जी बात करिए, आप लोगों ने, ऑपोजिशन ने जब उठाया प्रश्न की डिप्लोमेटिक फेलियर है, you have done, there was a diplomatic failure. जयशंकर जी कह रहे हैं कि तहावुर राणा को एक्स्ट्राडाइट करके यहां पर लेना is a diplomatic victory. TRF को टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना is a diplomatic victory. Now how can you deny it? Diplomatic victory तो दिख रहा है. And as Prime Minister Modi said, only 3 out of 193 nations. तो where is the diplomatic failure? पूजा जी, क्या TRF, you said टनल जिसने बनाया, जिसने एक्सेप्ट किया, उनको डिक्लेयर कर दिया टेरर ऑर्गेनाइजेशन। पूजा जी देखिए, डिप्लोमेटिक सक्सेस हम तब बोल रहे होते जैसे कि अगर इंडिया, जब हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब चल रही थी ये वॉर चल रही थी, जो वॉर कहा जा रहा है सीज फायर हो गया है, नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि सीज फायर हुआ है कि जारी है, वो पता नहीं, अलग ही डायलेमा क्रिएट कर रखा हुआ है। अगर डिप्लोमेटिक सक्सेस होता तो जितनी डिप्लोमेटिक सक्सेस में हमें ये दिख रही होती कि अगर हमें डेलीगेशन नहीं भेजना पड़ता, एटलीस्ट हमें जो है सब सारे देश की तरफ से जो है आ रहे होते, वो सारे होते कि वी इट्स इंडियंस ऑन डिसीजन, इंडिया के अगर कोई अंदर घुस करके जाकर टेररिस्ट कर रहा है तो वो वहां पे जाकर के अटैक करना चाहिए। कोई सिंपैथाइज कर रहा है पाकिस्तान के साथ में, वो डिफरेंट होता, वो अपना कर रहा है, हमें जाकर के वहां पे ये सुनना नहीं पड़ता कि हम बैठ करके हमारा डेलीगेशन, आप कल्पना करें कि हमारा डेलीगेशन बैठा हुआ है और डिस्कशन कर रहा है कि हमारे यहाँ पर टेरर अटैक हुआ एंड हाउ वी डील विद इट, और पाकिस्तान जो है कैसे टेरर को पनपा रहा है, और हमारे सामने से जिस देश में हम गए हुए वो देश कह रहा है कि हम सिंपैथाइज करते हैं पाकिस्तान के साथ में, वहां पे उनके साथ में गलत हुआ है। Which country ये said तो this? फेलियर ही है ना। Which country said this, ma'am? मैम, ये किस देश ने बोला? कंबोडिया said it. Cambodia has said this, that we sympathize with Pakistan. Actually, yes, as far as I know, the only in the meeting we were having conversation with their delegation, with their people, and our delegation was having conversation in there only. Right. So according to you, Cambodia said this. ये करना पड़ रहा है, तो फेलियर है। और अगर आप चाह रहे हैं कि अगर अभी जो है आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भारत देश से इनके सरकार आने के बाद में चले गए हुए हैं, और ये लगातार, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहती, नहीं तो इसे लंबे चौड़े लिस्ट है जो 2018 से कोशिश करें उनको भारत देश लेकर के आएंगे, भारत देश लेकर के आएंगे, और अभी तक नहीं ला पाए, और कुछ भी होता है कहते नहीं वो वहां से चला रहा है। भाई कैसे चला ले रहा है? आप उसको अपने देश में नहीं ला पा रहे हैं और विदेश में जाकर के वो आकर के हमारा देश डिस्टर्ब कर दे रहा है। ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं? और हम, हमारी डिप्लोमेटिक कितनी हो रखी हुई है कि हम जो है डिस्कशन कर करके ला नहीं पा रहे। अगर कोई एक लेकर के आरोप कर रहे हैं हमारी विक्ट्री है, चलिए ठीक है, बधाई है, विक्ट्री है, पर कहीं उससे ज्यादा, जैसे भी भाजपा के प्रवक्ता ने एक चार्ट बनाया जैसे कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते कंपैरेटिव चार्ट बड़े स्तर पे हुआ, 100 से अधिक की संख्या में वहां के जो आतंकवादी हैं वो स्पष्ट मारे गए, आतंकवादी मारे गए, आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो डिस्ट्रॉय किए गए, उसके बावजूद भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, और सक्सेसफुली अटैक कर सकते थे क्योंकि हमारे पास में सरकार की तरफ से निर्देश था कि पाकिस्तान के आर्मी बेस पे अटैक नहीं करना है, हमें उन्हें बचाना है। When we were attacking the terrorist points, at the same time we have to defend the
आर्मी बेसिस। पूजा मिश्रा जी कि जो है वहां पे अटैक किया, हम कौन प्रश्न उठा रहा है उस पे? पूजा मिश्रा जी ऑन कंबोडिया, पूजा वो एक मिनट, अविनाश मलिक साहब प्लीज 1 सेकेंड। पूजा मिश्रा जी ऑन कंबोडिया, आई हैव द स्टेटमेंट ऑफ कंबोडिया राइट हियर। दे हैव सेड we would like both countries to show restraint and not get into conflict. They have not said anywhere, at least I have not been able to find, and I have gone into deep search where they have said that we sympathize with Pakistan. I think Can you send it to me, please? Can you send it? This is the ma'am, this is the official website of the Cambodian government, ma'am. It says very clearly that they have not. I do agree with that, but when our delegation came back from there, and they said that this statement. Officially, we are disappointed. मैम, कंबोडिया ने सिर्फ एक ही चीज कही कि दोनों देशों को रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए। Let me tell you very frankly, officially they have never said that we are with Cambodia. हो सकता है कि किसी एक शख्स ने किसी और को कहा हो हमारी डेलीगेशन में, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऑफिशियली ऐसी पोजीशन नहीं है। But let me go across to delegation when they came back, they said that. All right, ma'am. Let me go across to जैन साहब। जैन साहब, आप ये बताइए कि बार बार कांग्रेस जो है, कोई अचीवमेंट भी होती है यार, उसमें आप कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। मतलब जैसे वो तहागुर राणा को यहां पर लेकर के आए, ठीक है साहब, टीआरएफ को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट ऑपोजिशन फ्रॉम पाकिस्तान, उसके बावजूद, और फिर भी आप कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं किया। अब ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ करी, बाकी सब लोगों की भी तारीफ करी, आखिर तक राजीव गांधी की तारीफ करते रहे कि उनकी वजह से उनका इलाज हो पाया, तो ऐसा तो आपको भी करना चाहिए ना, बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना। आपको क्या लगता है जैन साहब? जैन साहब बोलिए। आई थिंक यू गॉट योर फोन ऑन म्यूट, अनम्यूट कीजिए ना फोन को सर। जेंटलमैन, आई कांट हियर मिस्टर जैन। सर अब आ रही है बस। हाँ सर, सर मैंने ये कहा जरा बड़ा तहे दिल से मैं आप दोनों की तारीफ करता हूं, आप दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने विजय शाह का टॉपिक लिया, आपने मणिपुर का नाम लिया, आपने सवाल पूछे जो नॉर्मली नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल नहीं हो रहा है, बट आपने जो सवाल पूछे, प्रियंका जी ने जो मुद्दा रखा उसके ऊपर जो आपने सवाल पूछे उसके लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद। और रही बात आपने जो बोला कि हर चीज पे विरोध क्यों करते हैं, हमने अफजल गुरु के फांसी को कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया, उसको कभी मार्केटिंग नहीं किया। हमने कसाब को फांसी दिया, उसके ऊपर कोई मार्केटिंग नहीं किया। जो चीजें देश हित में होती है, जो चीजें कोई नेशनल सेंसिटिव सिक्योरिटी के माध्यम पे होती है, उसके ऊपर हमने कभी मार्केटिंग, उसकी राजनीति नहीं की। यहाँ पे जो है ये लोग, अरे आप पुलवामा की बात करिए ना, हम आपको पूछते 300 किलो आरडीएक्स जब 8 दिन उस एरिया में घूमता है, वो कहां से आता है, उसका आज तक जवाब नहीं मिला। सर 300 किलो तो पूरा पुलवामा ही उड़ जाता सर। अभी पुलवामा वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड अगर 300 किलो आरडीएक्स होता। सर 300 किलो आरडीएक्स बहुत होता है। जी आगे बोले मेरा नहीं सर, आप बोलिए 300 किलो का आंकड़ा मेरा नहीं है सर, आप बोलिए प्लीज जी। सो बात यही है कि जब आप वो तनूर जो राणा की बात कर रहे हो, तो राणा के अलावा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बीच में हुए जो यूपीए गवर्नमेंट के दरमियान, जो अक्षरधाम के टेररिस्ट हो या अपना पार्लियामेंट के ऊपर के अटैक का अफजल गुरु हो या 2008 के जो लोग थे, उन सभी के ऊपर हमने कभी उसका मार्केटिंग नहीं किया, उसका हमने कभी प्रचार नहीं किया। ये लोग करते हैं एक, बात बताते हैं 100, उसकी जरूरत नहीं है। आपने क्या किया है उसके ऊपर बात करिए। और अभी मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, काले धन जो है, काला धन कहाँ पे आया? नहीं आया सर, ये बाद में बात करें। मैं आपको पूछता हूँ, आंसू बहाए आपने, आंसू बहाए, अमित शाह जी ने कहा आपने आंसू बहाए, सोनिया गांधी जी ने आंसू बहाए, बट किसके लिए बहाए? उनको आंसू बहाना था मोहन चंद शर्मा, हमारे पुलिस ऑफिसर पर, बट उन्होंने आंसू बहाए वो आतंकवाद के लिए। तो किसके लिए आंसू बहाते हो? ये आपको करना पड़ेगा। बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मरे हुए शहीद हमारे पुलिस ऑफिसर, जाबाज पुलिस ऑफिसर को छोड़, उस आतंकवाद के लिए सलमान खुर्शीद बाहर आके अमित शाह जी डिस्क्राइब कर रहे थे कि आंसू पटक रहे थे दोनों आंख से। सलमान खुर्शीद रो रहे थे, सोनिया गांधी जी रो रहे थे, पर उन आतंकवादियों के लिए देश हित में, देश के जवानों पर क्यों आंसू नहीं बहता? ये अमित शाह पूछ रहे हैं आपसे। कांग्रेस पार्टी के और हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी, हमारे संस्कार है, हमें हर चीज एक्सेप्ट करने की, हम लोग उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर करेक्शन के लिए भी हम लोग तैयार होते हैं।
और जो रेजिग्नेशन की बात थी, यहाँ पे रेजिग्नेशन करने के लिए जो है इन लोगों ने एक भी इंसिडेंट के ऊपर कोई चीज के ऊपर आएंगे नहीं। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, राहुल जी ने एक्सेप्ट किया, इमरजेंसी के वक्त की जो भी कुछ खामियां थी उसके ऊपर एक्सेप्ट किया, गोल्डन टेम्पल का था हमने उसके ऊपर एक्सेप्ट किया। क्या आपको लग रहा है कि पिछले हमारे कई बार वीर बहादुर फौजी जो पुलिस ऑफिसर थे मोहन चंद शर्मा जो बेचारा उस एनकाउंटर में मारा गया, शहीद हो गया, उनके लिए आंसू बहना चाहिए था, ना कि आतंकवादियों के लिए? हाउ डू यू सी दैट? जैन जी नहीं बोलिए। नहीं उस चीज के ऊपर जो है अभी उसके मुद्दे में अंदर से जाना और उसके बाद फिर से डिबेट करना, हम लोग जो मेन चीज के ऊपर जो है अभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक चीज पूछता हूं जैन साहब, एक्ट ऑफ टेरर, वो टेररिज्म का एक्ट था। लेकिन जैन साहब एक चीज तो बताइए, आप पे आरोप लगता है कि यू आर सॉफ्ट ऑन टेररिज्म। आर यू सॉफ्ट ऑन टेररिज्म? नहीं बिल्कुल प्रदीप जी एक चीज पूछ कभी ले, थी नहीं एक कांग्रेस पार्टी कभी सॉफ्ट थी नहीं, ना कल थी, ना आज है, ना कल रहेगी। अच्छा जैन साहब ये बता दें कि क्या ये असलियत है कि सोनिया जी एक्चुअली क्राइड बटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर? वो 3-4 बच्चे जो 3-4 जो आतंकवादी थे जो मर गए, अब ये खबर तो हर जगह आई थी, अब ये असली है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। वीडियो या यदि ये चीज की जानकारी है, यदि ये चीज का प्रूफ कोई आपके पास तो आप बिल्कुल दिखाइए। वो मेरे पास तो जैसे नहीं राहुल है, जी को जो बदनाम करने की मेरे पास कोशिश तो की, नहीं। ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक साइड से आलू डालूंगा। पूरे पार्लियामेंट में गूंज रहा था कि रात भर सोनिया जी सोए नहीं और सलमान खुर्शीद रो कर सोनिया जी से मिलकर बाहर आके रो रहा था। तो किसके लिए? वो आतंकवाद के लिए। ये दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट थी सर, आदरणीय नहीं, सम्माननीय ये आपके दिग्विजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं कांग्रेस में, उनकी स्टेटमेंट थी जी। अब आप बोले जैन साहब, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हाँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता जो कांग्रेस पार्टी में हैं दिग्विजय सिंह, और उनके दूसरे प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर साहब जो भारतीय जनता पार्टी के आपकी पार्टी में हैं, और तीसरे सैम पिट्रोडा साहब, वो सारे बीजेपी के तो लोग हैं जो जिनको आपने रखा हुआ है। अब आप बोले सर जैन साहब ये बताइए कि बीजेपी है सक्सीडेड, लेट्स बी वेरी क्लियर। हो सकता है कि जो प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ वो गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्यों हम लोगों ने देखा है सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बट बीजेपी है सक्सीडेड, बीजेपी सफल हुई है इस बात में कि कांग्रेस की सिंपैथी जो है, आपकी सहानुभूति उस तरफ है। अब इसके खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे बताइए ना। आज भी नहीं, ये बिल्कुल सक्सीडेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम चैनल में जो कुछ नेशनल चैनल्स है, उन लोगों के ही ऊपर है। आप कॉमन मैन, आज जनता, आज भी बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग जब रास्ते में घूमोगे, जब बात करोगे, तो आपको लोगों का फीडबैक मिलेगा। और आज देश की जनता जो इन लोगों से नाराज है, देश की जनता इन लोगों से पूरी तरीके से जी सर, हम लोग ज्यादातर रास्ते में रहते हैं। जैन जी, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मनीष तिवारी ने ट्वीट कर यह कहा कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। He said, क्या है वो ट्वीट के माध्यम से क्या सिग्निफाई करना चाहते थे मनीष तिवारी के आप कांग्रेस इज गोइंग द रॉन्ग डायरेक्शन? वाज दैट? नहीं, उसके ऊपर मैं तो टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। उस चीज की जानकारी, उनके विचार क्या थे वो ट्वीट करते वक्त, इसकी जानकारी तो मुझे बिल्कुल नहीं है जी। तो लेट मी गो अक्रॉस टू बैक टू पूजा मिश्रा जी, सिंस मिस्टर मलिक हैज लेफ्ट अस। आई डोंट थिंक मिस्टर मलिक वांट्स टू आंसर ऑन इंटेलिजेंस फेलियर। इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर के मलिक साहब के पास कोई जवाब नहीं है, और वैसे भी कैसे होगा। इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर के आज तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, विच इज व्हाट आई वांटेड टू कम बैक टू, एंड आई एम रीजनेबली सर्टेन डॉक्टर मलिक वाज वेरी श्योर व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क। हर बार इंटेलिजेंस फेलियर सिर्फ बीजेपी की रिजीम में क्यों होता है? कारगिल में 150 किलोमीटर अंदर आ गए, किसी को खबर तक नहीं हुई, एंड नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट एनीबॉडी। सो इज द केस राइट नाउ आल्सो। 6 हमारे 3 बड़े बड़े कंटोनमेंट, मैम आपको मालूम है पठानकोट इज द बिगेस्ट एयरफोर्स बेस, उसके ऊपर अटैक हो गया, नगरोटा पे अटैक हो गया, उरी पे अटैक हो गया, उसके बाद पुलवामा, उसके बाद ये पठानकोट। अरे किसी को मालूम ही नहीं है, खबर भी नहीं है, ये क्या है? आई मीन व्हाट इज, आई एम नॉट सेइंग दिस इंटेलिजेंस failure is just now. This intelligence failure has existed since before 1984. 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि लोगों को मालूम नहीं था कि इतना असला और इतने हथियार अंदर चले गए हैं हरमंदर साहब कॉम्प्लेक्स में। तो आप ये बताइए पूजा मिश्रा जी, एज एन impartial observer, what would you advise the government to do? Don't you think they should take action कि भाई इसको सॉल्व कीजिए?
क्योंकि अगले 6 महीने के बाद कुछ और भी हो सकता है, फिर अगले 6 महीने के बाद कुछ और होगा, फिर क्या करेंगे? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, 3, 4 ये करेंगे। आप बताइए मैम। राजीव जी जो है, जो ये आतंक जी बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जी इस बात से इंटेलिजेंस फेलियर हो रहे हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर में नहीं कहूँ, इन्वॉल्वमेंट होता है। मुझे लगता है कि बहुत सीरियस लुकआउट की जरूरत है। मुझे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हम लोग जब ये बॉर्डर एरिया पे रहा करते थे अरुणाचल प्रदेश में, एट दैट टाइम हमें पता चलता था कि जो आर्मी होती थी ना, उनकी ऐसे बटालियन ट्रांसफर होती थी। हमें समझ नहीं आता था, छोटे होते थे। अभी आज वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम लोग फिर अगर को मार्च करेंगे स्काउटिंग गाइड्स को, फिर उनकी ऐसे ट्रांसफर होगी, कल वो जा रहे हैं, दूसरी बटालियन आ रही है। तो आई हैड दिस क्वेश्चन, आई आस्क्ड माय फादर कि ये बटालियन ये आती है 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी कोई 5 दिन रुकती है, कोई 10 दिन रुकती है, फिर चली जाती है। तो मेरे फादर ने कहा कि ये बॉर्डर्स पे जो बटालियंस होते हैं उनको इसलिए इतनी जल्दी हटाया जाता है क्योंकि वो लाइजनिंग ना बना पाए, कि जो वहां पे एक आतंकवादी गतिविधि चल रही होती है, बॉर्डर्स पे जो चल रही होती है, अगर वो वहां पे रहेंगे तो लाइजनिंग बनने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो उनको वहां पे सेटल होने ही नहीं दिया जाता है। उनको होता है कि आप बिल्कुल मूव आउट करते रहो, आपको जो है सिर्फ जाना है रीजन पे, जो है अगर किसी अटैक के लिए भेजा गया तो अटैक करना है। तो ये अगर मेरे एक्सपीरियंस से बोला जाए, एज एन ऑब्जर्वर, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग कि आई एम एन स्पेक्टेटर हु हैज बीन सीइंग ऑल दोस थ्री और those throws। तो अब जाकर के उसमें क्या हो सकता है कि अगर इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के अबव तक जाओ कि कहाँ किस घटना में किस पोजीशन पे आकर के हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, कहाँ तक इंफॉर्मेशन आई। जहां तक बात रही पहलगाम की, तो पहलगाम पे सुनने का रहा कि इंटेलिजेंस का जो है क्लू था, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निरस्त किया गया हुआ था, क्योंकि ये था कि आतंकी घटनाएं हो सकती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में और बीएचयू में सिक्योरिटी बढ़ गई हुई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी जो है टेरर अटैक होने के वार्निंग्स आए हुए हैं। तो ऐसा हो रखा है कि जैसे कुछ बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हो रखा है, तो उन्होंने अपने गाइड्स वगैरह से साइन करा करके उनको आधार कार्ड के साथ में विद एन एप्लीकेशन एंट्री मिलती है। तो अगर ये जब आपको क्लू मिल रहे हैं, तो अगर वो मिलने के बाद भी घटना घटित होती है, जैसे कि पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे फेलियर हो रहा है। और जिस स्टेप पे फेलियर हो रहा है, मुझे लग रहा है आप चाहे पब्लिक डोमेन में लेकर के आओ या ना लेकर के आओ, पर सरकार को उस जगह पे जाकर के एक्शन ले लेना चाहिए। मैं फिर कहूंगी कि ये सारे गुण हैं, इनको जो ये टर्माइट है, ये टर्माइट हमारे देश को खोखला करेंगे, तो इस टर्माइट को पॉइंट आउट करना है और टर्माइट को निकाल देना है। आपको हम मत बताइए, आप बताइए कि वो आतंकी थे, आतंकी चले गए, उनके ऊपर एक्शन ले लीजिए। क्योंकि जो है कई बार जो आतंकी होते हैं, आप जैसे कि असम में अल्फा आपने सुना ही होगा ना, बहुत होते, दे आर पार्ट ऑफ यू ओनली, आपके साथ में है, एंड यू नेवर नो कि यही आदमी जो है जाकर के आतंकी हमला कर सकता है, कि ये नेक्स्ट मोमेंट में ये आतंकी है। तो ये तो जो इंटेलिजेंस है उनको पता चलता है, एंड दे हैव द क्लूज। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बात नहीं है कि उनको पता नहीं होता है। वो जो क्लूज होते हैं उस पे वर्क करके, और जो क्लूज मिलने के बाद में अबव फॉरवर्ड नहीं होते या उसको नेग्लेक्ट करते हैं, दे आर द प्रॉब्लम्स, उनको निकालने की जरूरत है और किसी भी सरकार है उसको करना चाहिए। You have raised an even more serious issue. It is not just an intelligence failure. It's a failure to act on intelligence. Intelligence आ जाती है और उस पे आप एक्ट नहीं करते हैं। For example, एक्ट नहीं करते हैं। पाकिस्तानी इंटरवेंशन took place, पाकिस्तानी अंदर आ गए, इन्फिल्ट्रेशन took place in Kargil in 1999। वो जो गडरिया था वहां पे, लद्दाखी जो था बेचारा, अभी उसकी शायद उसका इंतकाल भी हुआ है, अभी he was 52-53 years old. The army has given him a full burial with full military honors. He had told the army there कि भाई जल्दी कीजिए, यहाँ पर अंदर आ गए हैं लोग ये, and we did not take action for a long time. We did not do so. So is the case, I think, in Pahalgam. I mean, we really must figure out why is it we don't take these intelligence things seriously. There could be one reason. एक वजह ये हो सकती है कि हमारे इंटेलिजेंस वाले भी माशाल्लाह हैं। जैन साहब सुनने वाली बात है, हमारे इंटेलिजेंस वाले भी माशाल्लाह हैं, जबरदस्त लोग हैं। हर रोज वो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, 50-60 भेज देते हैं ऐसे कि यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है। इट्स लाइक द बॉय क्राइंग वुल्फ, कि भेड़िया आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो इसलिए उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। आई मे बी रॉन्ग, हाउएवर आई एग्री विद यू एंटायरली
Also, I expected at least the defense minister at least to tell us with regard to the downing of the Rafale aircraft कि क्या Rafale aircraft को डैमेज हुआ, did we lose any Rafale aircraft, didn't we lose it, क्योंकि it doesn't really matter, how does it make a difference, आपके 2 एयरक्राफ्ट गिरे हों या 10 गिरे हों, सीधी सादी बात है, if you have achieved your objectives, that's it, end of story. Nobody even tackled the subject. All that Rajnath Singh ji said was कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित है, that's it. तो आपको लगता नहीं है पूजा जी कि इसके ऊपर पूरी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि भाई ये ऐसा हुआ है? बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में बहुत काफी क्लियरली प्रश्न उठाया कि जो हमने उन्होंने उनकी स्टेटमेंट को अगर मैं डायरेक्टली कोट करूं तो उन्होंने बोला कि जब हमने नींबू मिर्ची जो लगा करके जो है तो वो सारी चीजें अगर वो गिरी इस्तेमाल किया गया जी नींबू मिर्ची और अखिलेश जी टॉक ब्यूटीफुली कहा कि द ग्रेटेस्ट थ्रेट इज फ्रॉम चाइना जो एंगल आपने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी जिस प्रकार से कहा कि द थ्रेट इज फ्रॉम चाइना एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, वी नीड टू टॉक अबाउट इट, बट जब वो नींबू मिर्च लेके कितने जहाज उड़े और किसने तो दैट वाज स्लाइटली किस प्रकार से देखते हो, बिकॉज़ द बीजेपी मेनी इन द बीजेपी फेल्ट दैट इज ट्राइबलाइजिंग द एंटायर डिबेट. पूजा मिश्रा जी नहीं, जब यानी राफेल विमान को नींबू मिर्च से तुलना करना नहीं, राफेल विमान को हम नींबू मिर्च से तुलना नहीं करते हैं. हमें लगता है कि जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही होती तो टेक्नोलॉजी में आप कह रहे हो तो नींबू मिर्च लगा करके उसकी जो है पूरे नियम के तहत जो है हम उसका जो हम लोग जनरली जो होता है आम घरों में उस तरीके से कर रहे हैं. तो इस चीज से जो है कहीं ना कहीं समझो कि ये आप टेक्नोलॉजी पे काम करिए ना, इसका काम है, राफेल का काम है ये जब जाए वहां पे फाइट करने के लिए तो सीधा फाइट करे वो हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो कि नीचे नहीं गिरे, और अगर वो नीचे गिरता तो हमें रेक्टिफाई करने में अगर 2 दिन लगता तो हमें पता तो चले कि कौन सी फेलियर हो रही होती है. हम लोग जनरली कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं जब रिसर्च कर रहे होते हैं कि अगर हमने ये किया और ये फेल हो गया तो कहाँ पे फेल हो गया, तब तो जाकर के उस पॉइंट पे जाकर के आप सीखेंगे, वो जानेंगे, तब तो जाकर के साइंटिस्ट उसको जो है मॉडिफाई कर पाएंगे. और आप उस पर अगर डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो आपको लगता है क्या कि आप निकल करके और लेकर चले जाएंगे आगे. अगर सीडीएस ने कहा कि ये मैटर नहीं करता है कि कितने जो है टेक डाउन हुए, पर वो किस लिए हुए ये मैटर करता है, तो यही बात कर लेते ना. ये बात करना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे जो अपने कह रहे नींबू मिर्च, अब कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आप नींबू मिर्च लगा करके उसको सजा रहे थे, सजा क्यों रहे थे, वो लड़ने के लिए है. और जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा सुखोई कहाँ पहुंचा गया हुआ है, हमारा राफेल कहाँ पे पहुंचा गया हुआ है, हमारे राफेल ने क्या किया हुआ है, हमारे सुखोई ने क्या किया हुआ है, ये हम बात कर रहे होते. जब यहाँ पे जो है आगरा एक्सप्रेस वे में लगभग 4 बार ऐसा हो चुका है कि प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, पूरे रूट को बंद कर दिया जाता है 3 दिन 4 दिन के लिए कि वहां पे एयर फोर्सेस जो है शाम के टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होते. तो वो प्रैक्टिस किया गया हुआ है, तो उसका परिणाम कितना निकल करके आया वो क्यों नहीं बताया जा रहा है, वो बताना चाहिए. और अगर फिर हम कहते हैं नहीं बताना चाहते हैं तो ये आपको प्रिसाइज होकर के बताना पड़ेगा कि किन कारणों से आप नहीं बताना चाहते हैं. इससे देश को कौन सा थ्रेट है, इससे जो है हमारे विरोधी देश को क्या मिलने वाला है. मैं फिर कहूंगी, आपने बड़ा बढ़िया कहा था कि हमें क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए. हम अगर कोई देश हमारे अगेंस्ट में है और हमारे यहाँ पे जो है भेज रहा है, इस जो है टेररिस्ट भेज रहा है, वो टेररिस्ट हमारे अगेंस्ट में ग्रो कर रहा है, उनको पाल रहा है, तो हमें उससे पूर्णतः बॉयकॉट कर देना चाहिए. अगर हम उसके साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें उसके वहां के आर्टिस्ट के सिंगर और एक्टर से क्या मतलब, क्यों परेशानी हो गई, हम क्यों उनके अकाउंट को बैन कर रहे थे. यहाँ पे हम एक बार जाकर के वहीं उनके वहां के प्लेयर के साथ में खेल रहे हैं और उनके फिर अकाउंट को, ये मतलब लेकिन सब अवेलेबल हो गए मैम, बढ़िया चीजों को नहीं होना चाहिए था. पूजा मिश्रा जी सारे हमने देखा था कि हमने बंद कर दिए हैं. दे आर ऑल देयर ऑन YouTube नाउ अगेन, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू 2-3 जो बहुत ही ज्यादा रैबिड थे, बहुत ही ज्यादा भारत विरोधी थे, जो बहुत गालियां दे रहे थे इधर उधर, उनके अलावा बाकी सारे अकाउंट्स देयर ऑल अवेलेबल राइट नाउ. बट पूजा मिश्रा जी जिस प्रकार से कह रहे कि कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी को अमित शाह जी और जय शाह का एक्चुअली प्रेशराइज करना चाहिए इस्तीफा के कैसे, आपने जब कहा कि एक्टर्स और स्टार्स और बाकी गाने वाले सब बंद है, बैन है, तो क्रिकेट क्यों खेले, आपको इस्तीफा मांगना चाहिए था दोनों का. पूजा जी आप क्या सॉफ्ट नहीं थे कांग्रेस एंड नहीं समाजवादी वे क्रिकेट इज कंसर्न, अमित शाह जी कसना चाहिए था. मुझे लगता है कि हमारे जो प्रश्न थे हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, जब बोलने की बात आई तो हम प्रश्न पे बोलते चले गए.
क्योंकि यहाँ पे ये भी देखा होगा, आपने देखा होगा कि राजीव जी प्रश्नकाल के समय में जी मैं स्पीकर्स का हमेशा बहुत सम्मान करती हूँ, पर वो जो है बिरला जी का जो है मुझे ये बहुत बेकार लगा। उन्होंने प्रश्नकाल के समय में कहा, जब प्रश्नकाल चल रहा है और फिक्स है कि जब जो है हमारा सदन चलेगा तो हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे, और हम जो है प्रश्नकाल में बस इतना कह रहे हैं कि एक एसआईआर का सवाल ले लीजिए भाई, एक एसआईआर का सवाल लीजिए। और वहां पे जो है हमारे जो चेयरपर्सन होते हैं, जो होते हैं सभापति महोदय, वो कह रहे थे कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन नहीं करना चाहते। आपको भी पता है कि वो लाइव चल रहा है, जनता देख रही है, और जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन होने का समय है, पर जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है। पर रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम प्रश्नकाल पे एक प्रश्न चाहते हैं, एसआईआर पे वो भी नहीं लिया जा रहा है। वहां पे जो है टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र जो है सिंह शेखावत जी ये बता रहे हैं कि होटल में किस तरीके से हम स्वच्छता मेंटेन कर रहे हैं, तो हम बस उस पे कर रहे थे। तो ये चीजें आपको लग रहा हो कि बहुत सारी चीजें, आई डू एग्री कि हमें क्रिकेट पे भी बोलना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब अगर बोले तो कोई बोल सकता है, बोले, और या फिर ये बोलना कि ध्यान नहीं गया होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल बात होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सबका बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रहता है कि क्या चीजें कहाँ पे चल रही हैं। पर मैं भी आपके चैनल की राय दूंगी, क्योंकि आपके चैनल पर डिबेट करने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो काफी सारी जो है काफी लॉजिकल बातें निकल करके आ रही होती है। ऐसा नहीं निकल करके आ रहा होता कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, बहस चल रहा है, फैक्चुअल चीजें आ रही है। प्रेशराइज करते हैं कि हम लोग जाके पढ़ें कि पहले क्या हुआ था, कौन सा फैक्ट था, कौन सा फैक्ट नहीं था। अभी जैसे आपने बोला सोनिया गांधी का, हमने बहुत सुना हुआ है कि सोनिया गांधी शी क्राइड ओवर द डेथ ऑफ टेररिस्ट, पर वो पता चला कि वो सिर्फ नैरेटिव है, इट्स जस्ट अ नैरेटिव एंड कोई प्रूफ नहीं है। एंड फॉर द इयर्स पीपल हैव बीन बिलीविंग इट, मींस when I was cross checking it, I got just blocked, means I never cross check it, and I was like, if something previous for no, अगर आप बोलते हैं एक ही चीज को बार बार बोलते रहिए तो so your mind perceive it as a truth। तो वो जब क्रॉस चेक करे तो कहीं मिल ही नहीं रहा है कि एक जो है कांग्रेस के नेता आए, उन्होंने बोल दिया और किसी पेपर ने छाप दिया। आप दोनों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सीधी सादी बात है, वेरी अनफॉर्चुनेटली the BJP spokesperson had to go to some other show. The fact remains that as far as पेट्रियटिज्म इज कंसर्न, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या देशभक्ति पूजा मिश्रा जी के लिए, जैन साहब के लिए, नाम्बियार साहब के लिए और मेरे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, बीसीसीआई के लिए नहीं है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के लिए नहीं है? मैं जानना चाह रहा हूं, मतलब ये क्या है यार? आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं सिंदूर से सिंधु तक, सिंधु का पानी बंद कर दिया हमने, वेरी गुड, करो। सतलुज का पानी बंद कर दिया, चनाब का पानी बंद कर दिया, और फिर जाके क्रिकेट खेल रहे हैं आप। ये क्या है? जैन साहब आप बताएं, बस दिस इज रॉन्ग यार, बस दिस इज नॉट डन, लेट्स बी वेरी क्लियर। आप बताएं सर, जैन साहब। सर आपका फोन फिर म्यूट पर है, म्यूट पर, अनम्यूट कीजिए उसको जी। सर बोलिए। देश का जो है स्वाभिमान और देश का जो सैनिकों का जो बलिदान है, अब ये जय शाह के लिए जो सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील बन चुका है। इस मैच से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों रुपए का स्पॉन्सरशिप मिलेगा, इससे कमाई होगी, और उससे हम लोग उस देश का खजाना भरने जाने वाले हैं, और यही पैसा जो है आतंकी फंडिंग में जाता है। जब शाहिद अफरीदी और जय शाह साथ में बैठ के स्टेडियम में चर्चा करते, बात करते हैं, जैसे उनकी बहुत पुरानी दोस्ती यारी है। अरे आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहां पे देश के अगेंस्ट में जो क्रिकेटर या जो इंसान बात करता है उसके ऊपर आप साथ में घंटों बैठ के चर्चा कर रहे हो, और उसका वीडियो आपको एक चीज की शर्म भी नहीं है, डर भी नहीं है कि ये वीडियो वायरल हो सकता है, वायरल होने वाला और आपकी सच्चे। बट इन लोगों को किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, इनका फायदा और इनका पैसा से मतलब है। जैन साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप राजीव शुक्ला जी को भी वो वीडियो भेज देंगे और उनको भी कहेंगे कि भाई ऐसा काम ना करो। राजीव शुक्ला जी तो आपके, राजीव शुक्ला जी तो कांग्रेस के हैं ना सर। चलिए, मोदी जी एंड में ये कहा कि हम युद्ध के देश, युद्ध वाला देश नहीं है, बुद्ध में मानने वाले देश है, बट समृद्धि और प्रगति का रास्ता शक्ति से होता है, और हमने पूरा दुनिया को दिखा दिया है हम कितने शक्तिशाली है। हाउ डू यू थिंक द कमेंट गोज? हमने क्या पूरा दुनिया को प्रूव कर दिया कि वी आर स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली एंड इमीडिएट डिफेंसिव मींस इस प्रकार से देश है? हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? नहीं, इनका ये लोग सिर्फ सर जो है, आपने देखा होगा, इनका ताकत, इनका हिम्मत, इनका डेयरिंग कोई मीडिया को फेस करने का नहीं, सिर्फ पॉलिश लाइन, बटर किए हुए कोटिंग, शुगर कोटेड लाइंस उनको लाके सामने लोगों के सामने रख देना है। देश की जो शादी
जो जनता है उनके सामने ला दो, उसके ऊपर चर्चा करोगे, उसके ऊपर टीवी शो, डिबेट्स, उसके ऊपर घंटे घंटे एक एक हफ्ता वही चीज चलेगी। और जो सॉल्यूशन आएगा, जैसे मैं आपको पूछता हूँ, उन्होंने जो ये था कि जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ, उसका कोई जवाब नहीं पूछेगा। उसके बाद कश्मीर सेफ है, कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला। आज जो भी हमले बार बार जो पिछले कुछ सालों में हुए, उसका क्या हुआ? सिर्फ इन्होंने लाइन छोड़ दी, उसके ऊपर डिबेट्स और चर्चा होती गई, बट उसका सोल्यूशन कभी निकला नहीं। जी दुरुस्त बात है, एंड आई होप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एट अ लेटर डेट वील ऑल बी एबल टू डिस्कस मणिपुर एंड व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। और मणिपुर में जो ड्रग माफिया है उसका खात्मा हुआ कि नहीं हुआ, जो कैरन रेबल्स हैं उनकी ऐसी की तैसी हुई कि नहीं। और आपने कंबोडिया की बात करी थी, बाय द वे मैम देयर आर लॉट्स ऑफ इंसर्जेंट्स फ्रॉम कंबोडिया आल्सो। भाई बहती हुई गंगा है, हम भी हाथ धो लेते हैं, बिकॉज इट इज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ हेरोइन एंड कोकेन इन द वर्ल्ड। तो चलिए हम भी हाथ धो लेते हैं उसमें। सो देयर आर अबाउट 4 कंट्रीज इन्वॉल्वड ओवर देयर, और वहां पे इट्स the situation, by the way, in my personal opinion, in terms of security, is fraught with danger. It's really I have a very dangerous lived in situation. Northeast for years, so Yes, I know ma'am, I know. a lot things which can't be discussed here. Yes ma'am, I think, but now the time has come to discuss them. मुझको ऐसा लगता है कि अब डिस्कशन करने का वक्त आ गया है। जो भी हो वहां पर जो भी If you want me, I can discuss it personally, but on national TV. I love the way you call us national Until TV. I thought we are international until TV. unless I'm that much sufficient or efficient. When I'll be efficient, I will definitely discuss all those जी stuff. थैंक यू सो मच, थैंक यू Currently, सो I'm मच। not efficient. पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much for being with जैन us. साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks. एंड आई होप यू एंजॉयड योरसेल्फ टुडे। जैन साहब पहली बार आप हमारे शो में बिल्कुल। वी एंजॉयड योर बिल्कुल, कंपनी, थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच। नमस्कार सर, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। But I thought the Prime Minister was quite good. I thought the Prime Minister was quite good in answering all the questions, etc. Of course, it was somewhat short on detail, but very, very good on rhetoric. As he said, Sindoor se Sindhu tak, and all such lines. And his speeches are usually full of such very good lines. And the Congress has lost the battle before it started because Chidambaram talked something. You had Tharoor on one side, you had Manish Tiwari on side, dragging the, the battlefield में करना जा रहा था उनको जो सारथी था जिस प्रकार से डिस्करेज कर रहा था. It was similar with the Congress. The people within the leaders within the Congress were discouraging them. Correct, absolutely correct. Kripacharya himself was there, who was driving Karna's chariot. Kripacharya, please do remember, was the mama of Nakul and Sahadev, Madhuri's brother. और लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, I expected that at least राजनाथ सिंह जी would take it head on. वो मतलब सीधा बोलते कि भाई हाँ क्या है, आप टेक्निकल डिटेल्स तो नहीं बता सकते ना आपको कि कोई एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ नहीं हुआ, मैं कहाँ से बता दूंगा आपको? आप लोग बार बार पूछे जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी पूछ रहे हैं वही आप लोग पूछ रहे हैं. We can't tell you right now. You could have just tackled the whole question head on and said no, we can't tell you that right now. But as far as we are concerned, these are the details, these are the air bases, airfields that we have hit, and as per our information, ये जो मेरी information है by the way, वो ये है कि अभी तक 7 एयरफील्ड जो हैं उनकी रिकवरी में 1-1.5 महीना और लग जाएगा. प्रदीप जी, बिल्कुल. That Rahim Yar Khan airbase Yes, totally. is gone. Noor Khan airbase वो भी रिपेयर हो रही है अभी तक. Nothing is taking off, but landing over there. Oh, I've been told, I could be wrong of course, but I doubt it. When Modi talks about Murud K and the Murid Jaish K. Mohammed K and Murid K, sorry, talked about 2 things. Pradeep ji, 2 bases. Murid K and Bawalpur. Bawalpur. So he Murid says K and nobody Bawalpur. dared to do. We have gone and done which no other person has gone. The same dialogue. अरे भाई जो एयरफोर्स के कोई हमारे जो एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं यार भावलपुर पे अटैक कर दिया, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती. That was amazing, really and truly speaking. So congratulations to our armed forces. They've done a wonderful job. I hope they don't have to do Operation Sindoor Part 2, but if they have to do But it, the Prime Minister said the operation is not over. It is on. Operation Sindoor is on, said the Prime Minister. It's not off. I hope when Operation Sindoor Part 2 starts, I hope the armed forces are allowed to finish the job. And he's already said that we have given them full, absolute authority, full confident and absolute authority to do whatever they want to do. And as far as Mr. Trump is concerned, this is my own opinion, and I'm repeating it over here. Thank God Mr. Modi has not taken the bait, and thank God he has not retaliated to whatever Mr. Trump is saying. He can do so after the tariff treaty is signed. एक बार साइन हो जाए उसके बाद देखते हैं ट्रम्प साहब का क्या And करना one है. thing is very clear,
An act of terror is an act of war. Act of war and will be Act of treated terror as is such. an act of war and be dealt with. And the perpetrators of terror are the same as their masters. Absolutely. कि यानी उनके जो आका हैं वो और आतंकवादी खुद दोनों Both will be dealt with. और जो आतंकवादी नेटवर्क यहाँ पर है मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त एक्शन होगा. बट एनीवे, great speech from the Prime Minister, lovely speech from the Home Minister, as usual, his usual aggressive self. And I hope to God Rahul Gandhi साहब जो हैं, he gets briefed better instead of saying that we asked for a ceasefire. I mean, come on. That is awful. I mean, come on. The DGMO calling them and telling them we have Arey destroyed the terror targets, terror infrastructure, and he says that was an act of. राहुल गांधी जी को क्या हो गया भैया? अभी आपकी 100 सीट आई हैं बड़ी मुश्किल से, और एक सीट और अगर गिन लीजिए सांगली वाली तो 101 हो गई. अगर आप इसी तरह बात करते रहे तो इस बार आपकी 20 सीटें हो जाएंगी अगली बार. मतलब मत कीजिए. एनीवे, वी कैन ओनली एडवाइज यू. आगे पार्टी आपकी, फ्यूचर आपका. And he is the opposition leader. And he is the leader of the opposition with a cabinet rank, sir. He's got a cabinet rank. Effectively, he is shadow prime minister. अगर देखा जाए तो, if you follow the Westminster system, he is a shadow PM. What message are you giving to the army top leadership? You are saying that you lost. You called for a ceasefire. You begged for a ceasefire. That's what you're saying. मतलब आप फौज की बेइज्जती कर रहे हैं ना आप. यही कर रहे हैं ना आप. Oh God. And over here I don't kind of disagree with the Prime Minister when he says कि फौज के खिलाफ आप लोगों का कुछ रहा है शुरू से. And at some point of time we'll discuss that too. Well, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से. और इसके पहले कि मैं बोलूँ कि सब्सक्राइब करें, पहली घंटी बजा दी आप लोगों ने, दोबारा बजा दीजिए भाई. बजाइए जी. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. And do send in your comments. What did you think of the Prime Minister's speech? What did you think of Mr. Rahul Gandhi saying that we asked for a ceasefire? कि हमारे डीजीएमओ ने उसको फोन किया बोलने के लिए कि भैया हमें सीजफायर चाहिए. ये बोलना चाह रहे हैं आप राहुल गांधी साहब? आप एलओपी यहाँ के हैं कि मतलब I don't want to say the next part. But that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.